Assalamualaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. Assalamualaikum guys. In this video, I am going to talk about what is Visio 2016. Hopefully, if you are related with computer, and hopefully in this video is belong to you. So what is Visio? Visio is industry leading diagramming solution used by over 12 million users, and today we are thrilled to share our latest innovation with you. Visio 2016 make it easier for everyone to define business processes, document best practices, visualize the future state of transformation initiatives, and stay on top of operational insights. Using Office 365, you can share this visual diagram with everyone and communicate one version of the truth to drive organization-wide alignment. Visio 2016 offers starter diagrams, hundreds of smart shapes, one-step data link, information right management (IRM) for compliance, and so much more. Working visually is now faster and easier than ever. Get started quickly. When started out, the new Visio offers a set of pre-crafted starter diagrams and contextual tips and tricks to help you easily create, edit, and complete your diagram. These quickly executable diagrams are available in 15 of the most popular domains: flowcharts, timelines, workflows, etc., and will inspire and guide you from start to finish. The new built-in Tell Me support helps you navigate more than 800 commands in Visio. Just ask Visio how to do something, and the relevant commands are displayed in a simple drop-down list. You can execute the command just by clicking one of the options listed. Now, even new users can leverage the full capabilities of Visio. Be productive and compliant. Visio offers thousands of shapes that meet industry standards, including BPMN 2.0, GML 2.4, and IEEE new. Whether you want to map out an IT network, build an ORG chart, document a business process, draw a modern floor plan, or capture a flowchart from a whiteboard, the new Visio can help you work visually and stay compliant. Easily connect data to diagrams. With Visio, you can link diagrams to popular data sources such as Excel, Active Directory, SharePoint, and SQL Server to display data on top of real-world visuals. For example, you could depict an assembly line in Visio and connect the different components of that diagram to real-time operational data. Data-linked diagrams can update automatically and will display different icons, simple and colors to reflect changes in the underlying data. The Visio 2016 quick import capability now makes it easy for anyone to link data to real-world diagrams, plans, and processes. With a single click, the new Visio can automatically identify the data source, import the data, link that data to shapes, and apply data graphics. With one step, data links, you can easily turn diagrams into dashboards and monitor progress or performance in real time.
Visio 2016 also makes it easy to swap out, out the graphics to your preference with a single click and make your data easily digestible. Collaborate with confidence. More than ever before, our day-to-day work involves collaborating with others. This means sensitive information within diagrams requires new levels of protection. Visio 2016 now supports information right management (IRM) and lets you control document rights at the individual user level. With Visio 2016, you can work visually, leverage data and protect sensitive information like never before. Experience the new Visio for yourself by starting your trial of Visio Pro for Office 365 now. मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ये डायग्राम सारी बनानी है, कि आपने एक्टिविटी डायग्राम कैसे बनानी है, आर्किटेक्चर डायग्राम कैसे बनानी है, क्लास डायग्राम कैसे बनानी है, डीएफटीज मींस डेटा फ्लो डायग्राम आपने कैसे बनाना है, और उसके बाद फ्लो चार्ट आपने कैसे बनाना है, सीक्वेंस डायग्राम ये आपने कैसे बनाना है, यूज्ड केस डायग्राम आपने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होती हैं। तो आइए हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं, वहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट इज़ एक्टिविटी डायग्राम। व्हाट इज़ एक्टिविटी डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम इस पहले लिंक को ओपन कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं होता क्या है। एक्टिविटी डायग्राम इज अनदर important behavioral diagram in UML diagram to describe dynamic aspect of the system. Activity diagram is essentially an advanced version of flowchart that modeling the flow from one activity to another activity. Means के जो एक्टिविटी डायग्राम है ये एक यूएमएल डायग्राम टाइप है, ये एक टाइप है यूएमएल डायग्राम की। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इधर आप देख सकते हैं, इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक होगा स्ट्रक्चरल डायग्राम और एक होगा बिहेवियरल डायग्राम। तो आप मजीद स्ट्रक्चरल डायग्राम में आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डिप्लॉयड डायग्राम, पैकेज डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम, और लास्ट वन कंपोनेंट डायग्राम। अगर आप बिहेवियरल डायग्राम को देखेंगे, उसमें मजीद आप जाएंगे तो इसमें आपको मिलेगा एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम में मजीद आपको सीक्वेंस डायग्राम भी मिलेगी और कम्युनिकेशन डायग्राम भी मिलेगी, और उसके अलावा इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम। तो अभी हम पढ़ेंगे यूएमएल की जो टाइप है बिहेवियरल डायग्राम, उसमें एक है एक्टिविटी डायग्राम। उसको पढ़ेंगे कि एक्टिविटी डायग्राम में ये होती है कि हमें ये फ्लो ऑफ डेटा मीन्स कि हमें बताती है कि जो एक्टिविटी है वो कहाँ कहाँ जा रही है, वो जो एक्टिविटी है वो किस एक्टिविटी के थ्रू वो डेटा फ्लो करवा रही है। तो ये थोड़ा सा पूरा डायग्राम भी देख सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है, ये इधर से जाकर इधर भी जा रही है और इस एक्टिविटी में भी जा रही है। तो ये सारा हम प्रोसेस देखेंगे जी कि हम इस तरह की डायग्राम आप कैसे मिलते हैं। उसके बाद बताता है कि व्हेन टू यूज एक्टिविटी डायग्राम। तो एक्टिविटी डायग्राम डिस्क्राइब हाउ एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड to provide a service which can be at different levels of abstraction. उसके बाद कहता है typically an event needs to be achieved by some operation, particularly where the operation is intended to achieve a number of different things that require coordination. How the events in a single use case relate to one another. In particular,
use cases where activities may overlap and require coordination. It is also suitable for modeling how a collection of use case coordinate to present business workflows. तो पहला जाता है कि आइडेंटिफाई candidate use cases through the examination of business workflows. Identify pre and post condition, the context for use cases. Model workflows between within use cases. Model complex workflows in operation on objects. Model in detail complex activities in a high level activity diagram. तो आप इस डायग्राम में से देख सकते हैं कि नाम से ही जाहिर है कि एक्टिविटी डायग्राम मीन्स के कौन कौन सी एक्टिविटी से ये होकर जा रहा है। तो सबसे पहले इधर होता है प्री कंडीशन, मीन्स के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं प्री कंडीशन। उसके बाद कौन सा इनपुट है, एक्टर इनपुट है। उसके बाद है सिस्टम स्टेप, स्टेप 1 होगा, उसके ये एक एक्टिविटी है जो स्टेप 1 है। उसके बाद है ये एक कंडीशन इसने लगाई हुई कि ये अगर वो ना हुआ तो ये स्टेप 2 को शो कर इस कंडीशन पर जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ तो डायरेक्ट स्टेप 2 पर जाएगा। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं। अगर वो जो ऊपर वाली कंडीशन है स्टेप 1 के बाद जो कंडीशन इसने लगाई अगर वो ना हो गया तो ये जो जो दूसरी कंडीशन उस पर जाएगा तो ये अल्टरनेट कोई फ्लो ढूंढेगा, ये स्टेप 3 पर जाएगा। अगर स्टेप 2 होती है फिर ये फिर भी नीचे स्टेप 3 पर ही जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 भी एक एक्टिविटी है। उसके बाद ये जाता है इस पर और उसके बाद ये इसमें मजीद 2 स्टेप बन जाते हैं, एक स्टेप 4.1 एक स्टेप 4.2। तो ये दोनों से अगर इनमें से जो भी ये दोनों एक्टिविटी इन दोनों को देखे और दोनों को प्रोसेस करके ये पोस्ट कंडीशन पर आ जाएगा। नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो हम इसी डायग्राम को बनाते हैं जी। हम कैसे बना सकते हैं, तो हम इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैंने आपको पहले बताया कि विजियो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूएमएल की जितनी भी डायग्राम्स है जो सॉफ्टवेयर बनती है वो हम बना सकते हैं। तो आइए हम इस डायग्राम को से बनाते हैं कि ये कैसे कैसे हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें विजियो को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विजियो इंटरनेट से। तो इस तरह आप इंटरनेट पर जाएंगे। हम सबसे पहले फाइल आईपो जो है इस पर चेक करते हैं आया कि इसमें है कि नहीं। google.com ओपन कर लें। तो ओपन करने के बाद इधर आप देखें फाइल आईपो। आपको पता है कि फाइल आपको एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर हर किस्म का आपको सॉफ्टवेयर मिल सकता है। इसमें तकरीबन 43,000 सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि आप फ्री आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस पहली वेबसाइट को ओपन करते हैं फाइल ipo.com को। उसके बाद हम सर्च में चेक करते हैं कि आया कि इसमें है कि नहीं। तो विजियो इसको हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कि नहीं। तो इसमें मौजूद है जो लिखा हुआ विजियो प्रोफेशनल 2013। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। और उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे इसको, आप इंस्टॉल कर लें इस सॉफ्टवेयर को। उसके बाद आप इसको ओपन कर लें। तो मेरे पास ये डाउनलोड है और मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हो। तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट इसको ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास ओपन है। तो उसके बाद हम इसमें इसको ओपन कर दिया, फिर आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो मैं इसको बेसिक डायग्राम पे ओपन कर लेता हूँ।
ओपन कर लिया मैंने। उसके बाद जैसे वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है, वैसा ही इसकी शेप है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड पर काम किया हुआ है या एक्सेल वगैरह पर काम किया हुआ है, तो इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें शेप्स है डिफरेंट किस्म की। इधर यहाँ पर वही वर्ड वाला ये काम इसमें आप कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट वाला भी है, और वो पूरा फॉन्ट इसमें है। उसके बाद पैराग्राफ का भी है, शेप्स वगैरह ये सब इसमें है। इंसर्ट वगैरह आप इसमें कर सकते हैं, पेजेस वगैरह लगा सकते हैं, कोई टेबल लगा सकते हैं, डिज़ाइन को भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ओके, उसके बाद आप कोई डेटा वगैरह इसमें सब कुछ आप कर सकते हैं जैसे आप उसमें करते हैं। मैं सीधा होम पर चला जाता हूँ। उसके बाद हमने बनानी है कौन सी डायग्राम, ये तो हम शेप्स पर चेक करते हैं, शेप्स वगैरह पर इधर के। उसके मोर शेप्स पर जाते हैं, तो मोर शेप्स में होगा जी, ये तो हम चेक कर लेते हैं सारी को। पहले आप शेप में जाए, इसमें आपको हर तरह की डायग्राम्स आपको मिल सकती हैं। इस तरह आप माई शेप, जो फेवरेट्स आपकी शेप्स हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस के हवाले से उसमें इसमें शेप्स हैं वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में शेप्स हैं, बिजनेस प्रोसेस के बारे में शेप्स हैं, चार्ट एंड ग्राफ्स हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स के मुख्तलिफ बैंक वाले आते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसमें आप इसमें भी आप जो चार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसका पाइवट डायग्राम है। तो इसके अलावा इंजीनियरिंग के भी डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डायग्राम हो सकती है इसमें, आप देख सकते हैं। एनालॉग डायग्राम है, डिजिटल लॉजिक है, कंपोजिट असेंबलीज है, फंडामेंटल आइटम्स है, फंडामेंटल, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट मैप्स एंड चार्ट्स हैं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में चार्ट्स मौजूद हैं। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी मुफीद है, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोसेस, उसके बाद बिजनेस के रिलेटेड इसमें डायग्राम मौजूद है। इसका मैकेनिकल को आप देख लें तो इसमें ये सारी डायग्राम मौजूद है। वेल्डिंग सिंबल्स हो गए, स्प्रिंग एंड बेरिंग हो से, ये सारी सिंबल्स इसमें मौजूद है, शेप्स मौजूद है। तो इसके बाद प्रोसेस इंजीनियरिंग में ऐसे पाइपलाइंस की होगी, प्रोसेस होगी, वेब्स एंड फिटिंग्स होगी, ये सारी इसमें डायग्राम मौजूद है। उसके हम फ्लो चार्ट्स पर आ जाते हैं। तो फ्लो चार्ट्स में भी हमें तो इसमें चार्ट्स वगैरह मौजूद है इसमें। उसके बाद हम आते हैं मोर शेप्स पर। इसमें फ्लो चार्ट्स हैं, इसमें इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी शॉप्स जो शेप है मौजूद है, सिंबल्स मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक्शन शेयर पॉइंट 10 वर्क फ्लो है, एक्शन शेयर पॉइंट 2019 वर्क फ्लो है, एरर्स शेप्स हैं, बेसिक फ्लो चार्ट शेप्स हैं, BPMN बेसिक शेप्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये सारे हो गए। उसे डिपार्टमेंट के अलावा हैं STL डायग्राम्स हैं, वर्क फ्लोस हैं। ये इसमें आप इसमें सारे फ्लो चार्ट मौजूद है। उसके जनरल से भी मौजूद है, मैप्स एंड फ्लो की भी मौजूद है, नेटवर्क के रिलेटेड भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद डिटेल डायग्राम में एक्सचेंज ऑब्जेक्ट हो गए, ये सारे इसमें शेप्स मौजूद है। सर्वर्स के हो गए, स्केड्यूल्स हो गई। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेटाबेस के रिलेटेड भी ये है, चेंज डेटा नोटेशन है, क्रॉस फोटो डेटा नोटेशन है, HTML डेटाबेस नोटेशन भी है। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी हैं, JML, जे क्लास है, सीक्वेंस है, स्टेट है, यूज है, इसमें सारे आपको मिल सकते हैं। तो इसमें एक्टिविटी डायग्राम्स भी है, ये देख सकते हैं HTML एक्टिविटी डायग्राम्स है। उसके बाद अभी हम इस पर काम करेंगे। तो इसमें वेब डायग्राम्स भी है। उसके बाद विच इसमें डिफरेंट किस्म की आपको डायग्राम, हर किस्म की आपको डायग्राम से हम मिल सकती हैं। तो हम हमारा जो काम है वो है GML एक्टिविटी पर। इस पर हम आते हैं।
तो सबसे पहले इनिशियल नोटेशन है जहाँ से डेटा हमारा स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमने डायग्राम देखी थी सबसे पहले ये था, उसके बाद एरो लगाते हैं इसमें हम एरो लगाते हैं। तो हम बेसिक शेप्स ढूंढते हैं इसमें, एरोस वगैरह। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ। जी आपको शेप्स कहाँ से मिलेगी? मैंने ढूंढ ली जी शेप्स वगैरह, तो आपको जी कहाँ से मिलेगी? आप मोर शेप में जाए और उसके बाद इधर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस में आप जाएंगे तो इधर आप सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें जाके आपने यूएमएल जो सीक्वेंस है इसमें आपने इसको क्लिक कर देना है, तो फिर आपके सामने ये शेप्स आ जाएगी। तो आप जब आप इसको सिलेक्ट करोगे इधर जो मोर शेप्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वो इधर आ जाएंगे आइकन वगैरह, ठीक है इसके क्या। तो आपको ये वाला चाहिए मैसेज वाला? तो आपको ये वाला नहीं चाहिए, सॉरी ये मैं जल्दी से ले आया। आपको ये वाला चाहिए, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए, इसका जोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये देख सकते हैं हो गया है। ये दूसरा है तो इसको दोबारा ऐसे करते हैं और दूसरा जी वाला ही करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वो डार्ट डार्ट के निशान है, इसके इस हिसाब मिला दें उसको और इसको सीधा कर दें और उसके बाद फिर आपने जे वाला है जो एक्टिविटी है इसको इस शेप को बनाना है। तो इस शेप को हम बनाते हैं। तो इधर आप आए जीएमएल एक्टिविटी पर, इधर एक ऑप्शन होगा एक्शन, ये आपकी एक्टिविटी है कि इसके साथ आप अटैच करते हैं और इसमें आप स्टेप 1 लिखते हैं जिसमें लिखा हुआ था। राइट क्लिक करके आपने इधर लिखा होगा एडिट टेक्स्ट, तो इसमें आप अपनी मर्जी का लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टेप 1, इंटर। उसके बाद अगला आपका काम ये है कि आपने फिर ये एरो लगाना है। तो उसी पर आए और नीचे जाएं जीएमएल सीक्वेंस पर। तो इधर से जी दोबारा यही वाला दोबारा सिलेक्ट करें और इसको सीधा कर दें। सॉरी, मसला हो रहा है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला ये है इसी को कॉपी करते हैं। हम इसको कॉपी कैसे कर सकते हैं? तो इसको आप सी कर दें, उसके बाद इधर आकर आप इसको पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट हो गया है। तो आप उस तरह आप लगाते हैं इसको और इसको नीचे से सीधा कर देते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको अटैच करती है और इसके बाद हम उसके बाद हमने ये इधर कंडीशन लगानी है।
तो ये शेप्स इधर है मौजूद है। तो हम GML एक्टिविटी पर गए और यहाँ से फिर हमने डिसीजन लगाया। ठीक है, इधर हमने लगा दिया। इसमें हम लिखेंगे हम लिखेंगे क्या था इधर, ये तो कुछ नहीं, नीचे इसमें 2 लिखा हुआ है तो हम इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, हम इसका शो देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बहुत छोटा है। तो हो गया। उसके बाद हम करते हैं हम फिर एरो लेकर आते हैं, ये सीक्वेंस और उसका मैसेज हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके आपने कंट्रोल सी करना है। उसके बाद इधर आकर आपने माउस की मदद से राइट क्लिक करना है, उसके बाद इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें और थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसको एरो को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इधर इसमें टेक्स्ट लिखो, एडिट टेक्स्ट ट्रू, इधर लिख दो ट्रू। ये हो गया। ये भी आपने बना दिया। उसके बाद इसी को ही कॉपी कर दो, उसके बाद इधर पेस्ट कर दो, पेस्ट। ये हो गया। और इसमें इधर लिख दो स्टेप 2। उसके बाद आपने ट्रू तो किया। उसके बाद इधर आपने कंडीशन लगाई थी नो का या ट्रू का, तो फिर आपने इधर नो वाली कंडीशन भी लगानी है। तो हम ये सेल्फ जो मैसेज है इसको हम लेकर आते हैं। इसी को ले आते हैं इसको। इसको देते हैं नीचे वाली कंडीशन, हम एक कंडीशन लगाते हैं और उसको जोड़ देते हैं इसके साथ। हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। सबसे पहले हम इस एरो को कॉपी करते हैं, इधर आकर इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सीधा कर दें। उसके बाद हमने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। उसके बाद इधर हमने माउस की मदद से पेस्ट कर देना है। जी वो भी वाला सिलेक्ट है, कंट्रोल सी। इधर आकर अपने पेस्ट कर देना है। ये इसका मुझे बहुत ही वो चले गए। ये हो गया। उसके बाद हमने इस एरो को खींच कर इसके साथ लगा देना है। हो गया, ठीक है। आपने इसको खींचना हो, इसके साथ अटैच करना है, तो ये खुद बहुत ही ऐसा ही हो जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, उस मसला हो जाएगा। तो इधर हम लिख देते हैं नो, लिखते हैं नो। उसके बाद हमने क्या बनाना है, स्टेप 3 बनाना है। तो स्टेप 3 में क्या होगा, हमने इधर एरो लगाने हैं।
हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और जब पेस्ट कर देना है। इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये वाला स्टेप इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये वाला भी हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऊपर ही करते हैं, जोड़ा हुआ नजर आए। तो ये हो गया। तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। इन सबको हमने छोटा करना है, तो इसको हम इन सबको हम छोटा कर देते हैं। कि जब आप इसको सेव कर इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, पिक्चर में लेकर आएंगे तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इसको छोटा कर दी ताकि मेरा और भी काम रहता है। तो आपने एक दफ़ा सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट की है सिलेक्ट करने का सारे को। तो आपने कंट्रोल ए करने हो, सारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपने सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 3। उसके बाद हम डायग्राम को दोबारा देखते हैं, फिर हमें ये एरो भी चाहिए, उसके बाद ये वाला निशान भी चाहिए। तो हम इसी एरो को कॉपी कर लेते हैं और इधर आकर पेस्ट कर लेते हैं। हो गया। उसके बाद हमें वो निशान चाहिए था वो वाला। तो हम जीमेल एक्टिविटी में जाते हैं और ये ज्वाइन नोट हमने इधर लगा देना है, ठीक है। ये लगा दी, इसको हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह के सबसे पहले हम एक्टिविटी दो बनाएंगे इधर, ताकि हम इसको जोड़ सकें आसानी के साथ। तो जे वाली हम एक्टिविटी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। उसके बाद इधर हम एक इधर पेस्ट करते हैं और एक इधर, हो गया। उसके बाद हमें वो एरो चाहिए, ये वाले, ये इसके साथ आपने लगाने हैं, उसके साथ इस तरह आपने कर देना है। इसको खींच लो जरा। इसको जरा देखते हैं ये कैसा लगेगा। टच किया और इसके साथ लगा दिया। चलो इसका इस तरह कर लेते हैं और इसको भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ये हो गया, ये दोनों हो गए। उसके बाद हमने इसको जोड़ना ही तो एरो इस तरह लगा दो। तो हमने फिर ये एरो सबसे पहले ये एंड नोट हमने लगाना है, ठीक है। तो फिर दोबारा जीमेल एक्टिविटी पर जाओ, उसके बाद फॉर नोट आपने करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। उसके दोबारा ये तीर लगा दो ताकि इसके साथ जुड़ा हुआ नजर आए। जीमेल सीक्वेंस,
इसको पहले इसके साथ अटैच करो और आपने इसका भी लगाना है। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं अब कितना कुछ रह गया है, उसके मुताबिक हम छोटा करते हैं। नहीं, छोटा थोड़ा सा रह गया, हम एक तीर लगाते हैं, उसके बाद फिर पोस्ट कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इधर इधर सी उठा लिए कॉपी, कंट्रोल सी, उसके बाद पेस्ट जब आपने लगा दिया, उसके बाद आपने एंड नोट जो है वो लगा देना है। ठीक है, जीमेल एक्टिविटी, उसके बाद ये फाइनल जो है, ये फाइनल नोट, इसको आपने लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं डायग्राम में और कुछ रह के तो नहीं गया यहाँ। हम देखते हैं ये इस तरह कैसे लिखने होता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, तो एरो निशान हम ऐसे हम शेप देखते हैं है कि नहीं। हम यूएमएल सीक्वेंस पर ही गए, ये देख सकते हैं, शायद जे वाला ही होगा। हम इसी को जे वाला शायद हो सकता है। जे वाला नहीं है, इसी को ही देख लेते हैं। हाँ जी वाला है। इस पर लिखते हैं, राइटिंग कोशिश कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ था इस पर? प्री कंडीशन। तो आपने इधर प्री कंडीशन लिख देना है। कहाँ पर गया ये? राइट क्लिक करना और एडिट टेक्स्ट जो है इस पर लिख देना है प्री कंडीशन। ये भी ठीक हो गया। उसके बाद हमने और क्या लिखा हुआ था इस पर? एक्टर इनपुट। दोबारा से लेते हैं, दोबारा इसको इधर लेकर आते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। इस पर लिखते हैं राइट क्लिक आपने करना है, उसके बाद एडिट टेक्स्ट। इसमें लिखें क्या लिखा हुआ था? एक्टर इनपुट। आपने लिखना है एक्टर इनपुट। ये भी हो गया। उसके बाद हम नीचे क्या लिखा हुआ था? सिस्टम स्टेप। इसको भी आपने लिख देना है। जी दोबारा लेकर इसको राइट क्लिक करो इस तीर पर, एरो पर, और एडिट टेक्स्ट कर दो। इधर था सिस्टम स्टेप, इधर आपने लिखना है सिस्टम स्टेप। और मजीद क्या था? बेसिक फ्लो। तो जिस तरह मैंने ये सारा किए हैं, इस तरह आप भी ये नीचे भी कर सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि हम इसको इमेज सेव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी फाइल में। तो हम फाइल पर जाते हैं और उसके बाद हम सेव एज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम ब्राउज करते हैं। इधर ब्राउज करने के बाद हम सबसे पहले इसका जो फाइल नेम है वो लिखते हैं। हमने क्या बनाया था? यूएमएल एक्टिविटी हमने बनाई थी। उसके बाद अगर आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फ्यूचर में इसमें और भी एडिटिंग वगैरह करनी है
कोई चेंजेस वगैरह करनी तो आप इसको विजुअल ड्राइंग में भी सेव कर लें, ताकि आपके पास मसला ना हो, आप इजीली इसमें एडिट कर सकें। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीडीएफ में चाहिए तो इधर से आप पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, तो आपने सेव करते ना तो ये पीडीएफ में भी आपके साथ आपके पास सेव हो जाएगी। और अगर आप विजुअल में करना चाहें तो ताकि आप फ्यूचर में उसमें आसानी के साथ उसमें चेंजेस कर सके, तो इसमें भी आप इसको सिलेक्ट करके इसमें इसको सेव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने इधर लोकेशन भी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने सेव करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं और उसके बाद आपने अगर आप पीएनजी में ये लिखा हुआ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, अगर आपने पीएनजी में सेव करना है तो इसको आप सिलेक्ट कर लें और इसको आप सेव कर सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो ये सारा काम है। तो आप इजीली आप हर किस्म की फ्लो चार्ट या एक्टिविटी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो में हमने बनाया था ज्योमेट्री डायग्राम, इसमें हम बना रहे हैं नेक्स्ट कौन सी डायग्राम है, हम देखते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम। सबसे पहले हम इसको गूगल में सर्च करते हैं ये होता क्या है आर्किटेक्चर डायग्राम। तो आइए हम सर्च करते हैं, इधर हम इसको क्रॉस कर देते हैं और इधर आपने लिखना है व्हाट इज आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ये लिखा हुआ है तो इसको आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पहले वाले को ही ओपन कर लें, हम देखते हैं ये कैसी डायग्राम होती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका व्यू कर लें। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये होता क्या है। इधर लिखा व्हाट इज एन आर्किटेक्चर। An architecture can be defined as an abstract description of entities in a system and the relationships between them. It involves a series of decision-making processes. The architecture is a structure and a vision. A system architecture is the embodiment of concepts and the distribution of the correspondence between the function of things or information and formal elements. It defines the relationship among elements as well as between elements and the surrounding environment. Building a sound architecture is a complex task and a great topic for us to discuss here. After you build an architecture, relevant parties must understand it and follow its decades. उसके बाद हम पढ़ते हैं next now. What is an architectural diagram? An architectural diagram is a diagram of a system that is used to abstract the overall outline of the software system and the relationships, constraints, and boundaries between components. It is an important tool as it provides an overall view of the physical deployment of the software system and its evolution roadmap. Next, what are functions of an architectural diagram? A diagram, much like a picture, is worth 1,000 words. In other words, an architectural diagram must serve several different functions to allow relevant user to understand a system architecture and follow in their decision making. We need to communicate information about the architectural diagram provide a great way to do this. To put down some major function, an architectural diagram needs to break down communication barriers, reach a consensus, decrease ambiguity.
Four types of architecture diagram. Diagrams can be classified into many categories. One popular type of diagram is the 4+1 view, which includes the scenario, logical, physical process, and development views of the architecture. First one is scenario view. This scenario view describes the relationship between system participants and functional use cases, and reflects the final requirements and instruction design of the system. This view is generally a use of case diagram. You know that in आर्किटेक्चर डायग्राम तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को कि इधर एक यूजर होगा जो कि डायरेक्ट वो एग्जिट भी कर सकते हैं और इसको पासवर्ड भी लगा सकते हैं, इसका ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो यूजर है वो सबसे पहले क्वेरी बैलेंस भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यूजर जो है ये ऑनलाइन रिकॉर्ड भी इसमें सेव कर सकते हैं और यूजर अपने आप रिचार्ज भी करवा सकता है। उसके बाद ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये सारा काम इसमें आप कर सकते हैं। तो जब आप जब कि इसमें यूज़र इंफॉर्मेशन लेगा तो वो कहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेगा, एक्सेल से। And next type is the logical view. The logical view is used to describe the component relationship, components, constraints, and boundaries. After the breakdown of system software function, it reflects the overall system composition and how the system is built. This view is generally a GML component diagram or class diagram. Next one is physical view. Of the physical view describes the mapping between system software and physical hardware, and shows how system components are deployed to a group of computable physical nodes. It provides guidance in the software system deployment processes. तो आप इसमें भी देख सकते हैं ये एक फिजिकल व्यू है आर्किटेक्चर डायग्राम का। ये भी एक टाइप ही है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप इज व्हाट इज प्रोसेस व्यू। The process view describes the communication sequence and data input and output between system software component and reflects the functional and data flows of the system. This view is normally presented as a sequence diagram or flow chart. तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये एक एक्टर है कि ये फॉर एग्जाम्पल एक्टर क्या होता है, यूजर ही होता है यहाँ। तो एक्टर का काम क्या होगा, रेफरेंस, उसके बाद जितनी भी उसमें क्लासेस वगैरह होंगे वो आपने इसमें डिटेल में आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें एक एक्टर होगा, मीन्स के यूजर्स हैं, वो कमांड देगा। तो जब वो कमांड किसके पास पास जाएगी, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन के पास है। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन के बाद किसके पास जाएगी, रजिस्ट्री प्रोटोकॉल के बाद के पास है। और उसके बाद रजिस्ट्री प्रोटोकॉल के बाद किसके पास उसका कौन सी क्लास के पास जाएगा, रजिस्ट्री के पास। उसके बाद डायरेक्टरी की हो गया, क्लस्टर हो गया, प्रोटोकॉल इंडेक्स ये हो गया। तो ये जब क्लाइंट के पास जाएगा तो वो बैक करके इसको रिस्पांस देगा, ठीक है। तो ये सारा काम जितना भी ये काम है ये सारा आर्किटेक्चर डायग्राम में होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट व्यू। The development view is used to describe the division and composition of system modules and refine the compositional design of internal packages. This view is used by developers and it reflects the system development and implement processes. तो डेवलपमेंट व्यू है ये जो डेवलपर होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये उनके लिए ये डायग्राम होती है। तो नेक्स्ट वन इज, तो हम फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है आर्किटेक्चर डायग्राम, उसको पहले देखते हैं वो कैसी है। तो इधर आर्किटेक्चर डायग्राम है तो इसको हम देख लेते हैं। तो
तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह की आप डायग्राम इसमें भी आप बना सकते हैं, इसमें भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद एडिटिंग जो एडोब फोटोशॉप है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, मीन्स कि आपने ये बड़ा वाला डिब्बा बनाना है। तो आइए हम इसमें देखते हैं हमें ये शेप्स मिलती है कि नहीं। हम इसको साथ ओपन कर लेते हैं, मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो कैंसिल करती है, सॉरी। तो हम इसको चेक करते हैं आया कि ये हमें शेयर्स मिलती है या नहीं। मैं इस सारे को रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं मोर शेयर पर। हम आते हैं सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पर। इधर से हम देखते हैं कि है कि नहीं। इसमें देखते हैं है कि नहीं। इसमें फ्लो चार्ट्स में देखते हैं। आप इस तरह की जो डायग्राम है वो आप अडोब फोटोशॉप में बना सकते हैं और इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो ये शेप्स मिल गई हमें। तो इसको आप रेक्टेंगल का जो बेसिक शेप है इसमें इसमें आपको सब मिलेगा। तो आप इसको करें, इसको आप बड़ा कर दें। तो इसमें आप इस तरह का टेक्स्ट लिख दें, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें इसको राइट क्लिक करें माउस की मदद से और इसमें एडिट करें, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने किस तरह का बनाना है, फिर जी वाला बनाना है। मैं लिखता कुछ भी नहीं हूँ, फिर आपको सिर्फ आपको इस तरह का डिजाइन बना के दिखाता हूँ। फिर अच्छा, इसका कलर मैं और कर देता हूँ। इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं हम ये वाला लिखते हैं। अच्छा ठीक है। सबसे पहले ये एक जो डायग्राम बनाते हैं इसमें बेसिक शेप्स। ये राउंड शेप्स इसमें डालेगी।
चलो ठीक है इस तरह का। इसको आप कॉपी करते हैं, उसके बाद इधर पेस्ट करते जाएं। इधर पेस्ट करते जाएं। पेस्ट। इस सारे को आप सिलेक्ट कर लें। जी हो गए। उसके बाद आपने इधर टेक्स्ट लिख देना है। और कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जे भी लिख देता हूँ, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। ठीक है, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। इसको एक डब्बे में बनाए और तो करते हैं, लिखते हैं। इधर एक और डब्बा बना देते हैं इसको। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। उसके बाद इधर एक और रेक्टेंगुलर शेप बना देते हैं। तो इधर एक और बना देते हैं। और इसमें हम राइट क्लिक करके इधर लिख देते हैं एडिट टेक्स्ट। क्या लिखना था? एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अपने आप इधर लिखते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये वाला काम भी आपका हो गया है। तो आप इसमें अपनी मर्जी का इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये आर्किटेक्चर डायग्राम बन रही है। तो आप देखते हैं पिक्चर को दोबारा। तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह अगर दो ऐसे करने हैं, पार्ट करने हैं, तो आपने ये कैसे काम करना है? तो मिनिमाइज करते हैं इसको और दोबारा उसमें जाएं। फिर रेक्टेंगुलर ले आए, उसको आधा इधर करते हैं और आधा नीचे करते हैं। इसी तरह इसी को ही कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दो। इसको थोड़ा सा इधर कर दो, थोड़ा सा ऊपर, और इसको इसके इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दो ताकि ये अलग अलग थोड़ा सा लगे। ठीक है, इतना कुछ ठीक है।
तो इसमें आप अपनी मर्जी के टेबल बना सकते हैं। आप मैं इन को ही कॉपी करता हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने सिलेक्ट कैसे कैसे करना है, कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल जो की है कीबोर्ड की, वो आपने प्रेस करनी है। उसके बाद इन डिब्बों पर एक एक करके आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जब सारे जब आपने सारे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने कंट्रोल सी कर देना, कॉपी कर देना। उसके बाद आप नीचे आकर इनको पेस्ट कर दें। ये देख सकते हैं पेस्ट हो गया है। इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप दोबारा इधर नीचे पेस्ट कर दें। तो ये कर सकते हैं। इस तरह आप इनमें भी पेस्ट करते हैं इसको, तो आप इनमें भी ये काम कर सकते हैं। ये हो गया। इस तरह आप अगर नीचे एक और ये वाला भी बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। इस तरह जैसे मैंने ये बनाया था, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। रेक्टेंगल दोबारा लिया, इसको इधर खींच के ले आए, इसको नीचे का तक ले आए। अब इसी को ही हम कॉपी करते हैं इन डिब्बों को ही, कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाएं और सिलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी कर दें। कंट्रोल सी करने के बाद इधर आकर इसको पेस्ट कर दें। ये हो गया, दे सकते हैं। इधर आप अपनी मर्जी का इन डिब्बों में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक, अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक, ठीक है। मैं अब आपको बताऊंगा कि क्लास डायग्राम आपने कैसे बनानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास डायग्राम होती क्या है। तो आइए हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं और क्लास डायग्राम को सर्च करते हैं। तो अपने ब्राउज़र पर गूगल लिखें और इस पर लिखें व्हाट इज क्लास डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपने लिखना है व्हाट इज क्लास डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम इस पहले वाले को ओपन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि क्लास डायग्राम होती क्या है। तो इधर सबसे पहले हम देखते हैं क्लास डायग्राम होती क्या है। लिखा हुआ है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ क्लास डायग्राम इन द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल, जिसे हम यूएमएल कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्चर diagram that describe the structure of a system by showing the system's classes, their attributes, operation or methods, and the relationships among objects. तो यूएमएल डायग्राम टाइप में दो टाइप्स हैं इसकी, एक है स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरी है बिहेवियरल डायग्राम। तो जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है इसमें क्लास डायग्राम आती है। तो हम मजीद इसको नीचे देखते हैं। पर्पस ऑफ क्लास डायग्राम shows static structure of classifiers in a system. Diagram provides a basic notation for other structure diagrams prescribed by UML, helpful for developers and other team members too. Business analysts can use class diagram to model systems from a business perspective. A UML class diagram is made up of a set of classes and a set of relationships between classes. Next, what is a class? A description of a group of objects
all with similar roles in the system, which consist of structure, features, attributes, define what objects of the class know, represent the state of an object of the class, or description of the structural or static features of class, behavioral feature, operations, define what objects of the class can do, define the way in which objects may interact, operation or description of behavioral or dynamic features of a class. Class notation. A class notation consists of three parts. Number one, class name. The name of the class appears in the first partition. Class attributes. Attributes are shown in the second partition. The attribute tab is shown after the colon. Attributes map onto member variable data members in quotes. Class operation methods. Operations are shown in the third partition. They are services that the class provides. The return type of a method is shown after the colon at the end of the method signature. The return type of method parameters is shown after the colon following the parameter name. Operation map onto class methods in code. Class relationships. A class may be involved in one or more relationships with other classes. A relationship can be one of the following types. Refer to the figure on the right of the following representation of relationships. सो हम देखते हैं कि हम कैसे क्लास डायग्राम बना सकते हैं। मैं इधर एक पिक्चर निकालता हूँ क्लास डायग्राम की और बिटमैप में देखता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये क्लास डायग्राम है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। आप पहले सबसे पहले इसको देखें। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन है तो उसमें आपकी क्लास होगी, एक क्लास का आपकी फाइल होगी। तो आपने जो मेन फाइल का नेम होगा आपने उसको लिखना, उसके उसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हुए, मेथड्स हुए, कंस्ट्रक्शन हुए या फील्ड्स वगैरह हुई, तो आपने ये सब कुछ इस तरह लिख देना है सीक्वेंस वाइज। उसके बाद जो मेन के साथ जो मेथड्स या कोई क्लास जुड़ी हुई है तो आपने उसके बाद उसके साथ नीचे लिख देना है। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल ये गेस्चर सेटिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है मेन के साथ। तो इसमें जितने भी फील्ड्स होंगी, कंस्ट्रक्टर्स हो गए, मेथड्स हो गए, ये अब ये भी आपने इसके साथ लिख देना। उसके बाद मजीद जो इसके साथ जो जुड़ी हुई होंगी क्लासेस होंगी मेन के साथ, जो सब मेन के साथ, तो आपने इन सब को इसके साथ वही सेम मेथड्स वगैरह लिख कर इसमें आप इसका जी आपकी एक क्लास डायग्राम बन जाएगी जी। इजीली आप इसको बना सकते हैं। मीन्स कि ये एक ट्रायंगल है तो आप इसको सॉरी ये एक रेक्टेंगुलर है तो आप इसको इजीली आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जी। आपने रेक्टेंगुलर डायग्राम ये आपने उठाना है, इसको आपने अपने जो क्लासेस के मुताबिक एडजस्ट कर देना है ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो आसानी से इसमें आ सके। नेक्स्ट वन इज आप कैसे डीएफटी बना सकते। डीएफटी कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। तो सबसे आप पहले हम देखते हैं डेटा फ्लो डायग्राम होता क्या है। तो इधर हम लिखते हैं व्हाट इज डीएफटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
विकी इस पहली वेबसाइट को ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम होता क्या है। तो ये ओपन हो गया। तो डेटा फ्लो डायग्राम, a data flow diagram is a way of representing a flow of data through a process or a system, usually an information system. The DFD also provides information about about the outputs and inputs of each entity and the process itself. A data flow diagram has no control flow. There are no decision rules and no loops. Specific operation based on the data can be represented by a flowchart. इसमें आपको ये बता रहा है कि इसमें जो डेटा फ्लो डायग्राम है न इसमें ना कोई कंट्रोल होगा, मीन्स की ना कोई कंडीशन लगेगी, ना कोई लूप होगी। इसमें डायरेक्ट इसमें कस्टमर होगा या यूजर होगा और उसके बाद सिस्टम होगा और उसके बाद डेटाबेस होगा, मीन्स कि आपका सिस्टम कहाँ पर आपका रिकॉर्ड सेव कर रहा है। तो नीचे हम देखते हैं there are several notation for display data flow diagrams. The notation represented above was described in 1979 by Tom DeMarco as part of structured analysis. For each data flow, at least one of the endpoint, source, and/or destination must exist in a process. The refined representation of a process can be done in another data flow diagram, which subdivides this process into sub-processes. The data flow diagram is part of the structured analysis modeling tools. When using UML, the activity diagram typically talks about the role of the data flow diagram. A special form of data flow plan is a site-oriented data flow plan. Data flow diagram can be recorded as inverted nets because places in such networks correspond to the semantic of data memories. Analogously, the semantic of transition from Patrice nets and data flows and function from data flow diagrams should be considered equivalent. तो फॉर एग्जाम्पल आपके एक सिस्टम में एक होगा कस्टमर होगा और एक होगा एडमिन होगा। तो मीन्स कि हाँ इन दोनों का अलग से फ्लो चार्ट बनेगी, मीन्स कि हर जो एक्टिविटी उसकी अलग से फ्लो चार्ट बनेगी। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। हम अपनी डीएफटी को ओपन करते हैं, बिट में पिक्चर्स ओपन करते हैं, सबको देखते हैं। सबसे पहले जो ES एक एप्लीकेशन है, तो इसमें हमने यूजर से रिक्वेस्ट कर और रिसीव लोकेशन कर है। तो हम दूसरे को देखते हैं, मीन्स के मैन्युअली कैसे, मीन्स के जो यूजर है वो किस किस तरह से एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं यूजर के लिए, तो वो सारे जितने भी तरीके आपने उसको डेटा फ्लो डायग्राम बनाने हैं। इसमें ना भी आपका ना भी लूप हो ना भी कंडीशन हो, सिर्फ आपका सिस्टम हो, डेटाबेस हो और यूजर्स हो। ठीक है, या एडमिन हो, ये चार पांच चीजें इसमें मौजूद होंगी। ठीक है, सिस्टम्स हो, यूजर्स हो, उसके बाद एरर्स हो और उसके बाद प्रोसेसेस हो। जितनी प्रोसेस होंगे वो भी इसमें ही आ गए। ठीक है, तो हम डेटा फ्लो डायग्राम का भी देखते हैं इसको पावर को। ये देख सकते हैं ये प्रोसेसेस है सारे, ये यूजर इन्फो ले रहा है इनसे। तो ये सारा ये एक डीएफटी डेटा फ्लो डायग्राम है। तो हम देखते हैं हम विजय में कैसे डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। तो अब हम एक न्यू बेसिक डायग्राम क्रिएट करते हैं।
इधर मोशेयर पर जाते हैं और इधर से सॉफ्टवेयर डेटा बेस और उसके बाद सॉफ्टवेयर पर इधर शायद दो डेटा फ्लो डायग्राम शेप्स हैं यहाँ। तो सबसे पहले आप इधर स्टार्ट स्टेट होती है, जो स्टार्ट स्टेट है उसके बाद एरो मैंने आपको बता दी आपने कहाँ से लेनी है। इधर सीक्वेंस वाला इधर होगा सीक्वेंस, इधर जाना है आपने और उसके बाद यूएमएल सीक्वेंस पर आपको आपने क्लिक कर दे तो इधर से आपको एरो मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं ये एरो है, तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके डेटा फ्लो डायग्राम पर आए, उसके बाद आपको कोई प्रोसेस लगाएं या यूजर लगाएं, तो ये सारा काम इसी में ही हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इस तरह आप स्टॉप स्टेट आखिर में ये लगाएंगे तो ये सारा डेटा प्रोसेस है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारा काम आप ये आपको जब आप कोई डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो ये सारी शेप्स आपको मिल जाएंगी। जो एरर्स वगैरह होंगे वो जो आपको जीएमएल सीक्वेंस से मिलेंगे, जो शेप्स वगैरह होंगी वो आपको इधर अलग से मोर शेप पर मोर शेप में आप जाएंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेटाबेस में जाएंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर को ओपन करके आपने इधर से डेटा फ्लो डायग्राम सेलेक्ट कर लेना है। तो इसलिए आप इन सब को आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम इज फ्लो चार्ट्स। हम फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं पहले हम देखते हैं फ्लो चार्ट्स होता क्या है। इधर हम लिखते हैं फ्लो चार्ट्स। हम पहले वाला लिंक ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं व्हाट इज फ्लो चार्ट। इधर लिखा हूँ व्हाट इज फ्लो चार्ट। A flow chart is a diagram that depicts a process, system, or computer algorithm. They are widely used in multiple field to document, study, plan, improve, communicate often a complex process in clear, easy to understand diagrams. तो आप इसमें आप इजीली आप इसमें सिर्फ यही होगा कि आपका डेटा है वो कैसे कैसे जा रहा है। आप इसमें आप कोई लूप वगैरह भी आप लगा सकते हैं, प्रिंट उसके बाद आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं। स्टार्ट बटन होगा, जे एक्टिविटी है, उसके बाद जे इनपुट है, जे इधर आपका जे इनपुट वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी एक्टिविटी है, ये भी एक कंडीशन लगाई हुई है। तो ये सारा काम इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने कैसे काम किया हुआ है। तो फ्लो चार्ट्स को ओपन करते हैं और एक बिट वेब में जाते हैं, उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं स्टार्ट बटन है, तो इसमें ये सारा काम वैसे ही हो रहा है। तो हम इसमें हम अपने जो विज है उसमें कैसे काम कर सकते हैं, चले देखते हैं हम। तो हम इसमें उसको ओपन करते हैं और उसके बाद हम मोर शेयर में जाते हैं, उसके बाद फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट्स है, बेसिक फ्लो चार्ट्स शेप्स। तो इसमें आपको सारी शेप्स मिल जाएंगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद आप इधर से आपको प्रोसेस का भी ये जो है ये ट्रायंगल है, ये आपको ये प्रोसेस का ऑप्शन है। ये डिसीजन का है, ये डिसीजन का होगा। उसके बाद ये सब प्रोसेस का मीन्स कि अगर इसके आगे कोई इसमें कोई सब प्रोसेस है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये डेटाबेस का है। तो उसके बाद ये ऑफ जो एंड पे होगा जहाँ पर खत्म होगा ये वो है। ठीक है,
तो इससे आपको एरो जीएमएल जो सीक्वेंस है वो उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है। नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारी वो है सीक्वेंस डायग्राम। हम सीक्वेंस डायग्राम को देखते हैं वो क्या होता है। इधर हम लिखते हैं सीक्वेंस डायग्राम। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी वही साइड डायग्राम आपको तो सही सारे मिलेंगी। आपको सीक्वेंस डायग्राम का मैं आपको बता दूंगा, आपने किधर से मिलेगा। तो ये लिखा हुआ GML sequence diagram are interaction diagram that detail how operation are carried out. They capture the interaction between objects in the context of a collaboration. Sequence diagram are time focus and are they show the order of the interaction visually by using the vertical axis of the diagram to represent time, what messages are sent and when. तो यूएमएल जो डायग्राम है ये इसमें दो टाइप से, तो जो बिहेवियरल डायग्राम्स होगी इसमें आपको ये सीक्वेंस डायग्राम का मिल जाएगा। तो उसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं सीक्वेंस डायग्राम कैप्चर्स द इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन कोलैबोरेशन दैट आइदर relies a use case or an operation. Instance diagram or generic diagram. High level interaction between user of the system and the systems, between the system and the other system or between subsystems, sometimes known as system sequence diagram. Purpose of sequence diagram: model high-level interaction between active objects in a system. Model the interaction between object instance within a collaboration that relies on use case. Model the interaction between objects within a collaboration that relies on operation. Either model generic interaction showing all possible paths through the interaction or specific instance of interaction showing just one path through the interaction. तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं सीक्वेंस डायग्राम हमने कैसे बनाई हुई है। तो हम इधर से हम देखते हैं सीक्वेंस डायग्राम में जाते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। सीक्वेंस डायग्राम में जो होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एक एप्लीकेशन है कोई एक एप्लीकेशन है, तो उसमें एक एक्टिविटी होगी बैटरी वाली। तो बैटरी में मेन जो उसमें क्लास है वो क्या है, तो उसके बाद आपका जो सीक्वेंस है मीन्स कि आपका जो डेटा वो कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ कहाँ से जा रहा है। तो आप सबसे पहले बैटरी वाली क्लास है तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन से फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले फंक्शन जो होगा जो यूजर इसको इस्तेमाल करेगा, जो उसके इस्तेमाल में आएगा या एप्लीकेशन की इस्तेमाल में जो वाली क्लास आएगी, तो उसमें सबसे पहले बैटरी मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग जो फंक्शन मेथड्स है वो काम करेगा। उसके बाद बैटरी मैनेजर पर जाएगा तो ये इसको रिस्पांस करेगा। तो जब रिस्पांस करेगा ये दोबारा उसको सिस्टम जो है वो फिर एक सिस्टम वाली मेथड्स होगा वो उसके पास जाएगा। तो इस तरह जो एक क्लास जो सीक्वेंस डायग्राम होता है वो एक क्लास का बनता है, ठीक है। जितने उस क्लास में जितने सीक्वेंस वाइज जितने भी उसमें मेथड्स होंगे वो आपको वो आपने इसमें लिखने होंगे। आप उस तरह आपने इसको इसकी शेष बनानी होगी, ठीक है। मीन्स कि आपका आपने अपने मेथड के जरिए ये बताना होगा कि आपका ये डेटा है वो कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, किस किस फंक्शन कौन सा फंक्शन पहले इस्तेमाल है, कौन सा फंक्शन बाद में इस्तेमाल हो रहा है। तो वो कैसे कैसे रिस्पांस दे रहा है ये आपने सारा सीक्वेंस डायग्राम में लिखना है, ठीक है। बनाना इस तरह आपने डायग्राम बनानी है। तो हम थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम की जो शेप्स है वो कहाँ से मिलेगी। तो हम इसमें जाते हैं, इसको इसमें आपको जीएमएल सीक्वेंस मिलेगा। तो जो एक्टिवेशन है जो जो है मैं बताता हूँ।
तो ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन जो है ये आपको इधर से मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट वाले होंगे ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता है कि ये जो है ये वाली जो डायग्राम्स हैं, तो ये ट्रायंगल जो है इधर से आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो ओके, तो इस तरह जी आप यूएमएल सीक्वेंस जो डायग्राम है इसके जरिए आप अपनी जो यूएमएल जो सीक्वेंस डायग्राम वो बना सकते हैं हर क्लास का, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट जो है डायग्राम है वो है हम यूज्ड केस डायग्राम। सबसे पहले हम ब्राउजर में जाते हैं और हम चेक करते हैं यूज्ड केस डायग्राम क्या होती है। इधर हम लिखते हैं यूज्ड केस डायग्राम। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है ये। तो यूज केस डायग्राम में ये होता है कि आपको डायग्राम उससे पता चल जाएगा कि एक फॉर एग्जांपल एक आपकी स्टूडेंट की वेबसाइट है या आपकी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले उसमें जो होगा कि एक डेटाबेस होगा, मीन्स कि एक एडमिन होगा और एक यूजर होगा। तो वो अपने जो स्टूडेंट जब आगे अपने रजिस्ट्रेशन करेगा, मीन्स के सबसे पहले वो अपनी क्लास देखेगा, अपनी क्लास का स्केड्यूल देखेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट है वो अपनी जो क्लास है वो भी ऐड करेगा, और उसके बाद जो स्टूडेंट है वो ड्रॉप क्लास भी करेगा। तो जब वो ड्रॉप क्लास करेगा वो उसमें रजिस्टर होगा, तो वो एडमिन उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। इस तरह वो जो स्टूडेंट है वो अपनी अपनी क्लासेस को भी देख सकता है, और जो एडमिन से और जो ऑपरेटर है उससे हेल्प भी ले सकता है। मीन्स के यूज केस डायग्राम में ये होता है कि आप मीन्स के जो यूजर है वो क्या क्या काम कर सकते हैं, और जब वो और उसमें जो यूज केस डायग्राम उसमें आप डेटाबेस भी शो करवा सकते हैं और उसमें एडमिन को भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज अ यूज केस डायग्राम। A use case diagram is a dynamic or behavioral diagram in UML. Use case diagram model the functionality of an system using actors and use cases. Use cases are a set of action, services, and function that the system needs to perform. In this context, a system is something being developed or operated, such as a website. The actors are people or entities operating under defined rules within the system. Next, why make use case diagram? Use case diagram are valuable for visualizing the functional requirements of a system that will translate into the design choices and development priorities. They also help identify any internal or external factors that may influence the system and should be taken into consideration. They provide a good eye-level analysis from outside the system. Use case diagrams specify how the system interacts with actors without worrying about details of how that functionality is implemented. बेसिक यूज केस ऑफ डायग्राम सिमिलर नोटेशन सिस्टम। सबसे पहले ये जो होगा ये सिस्टम को शो करेगा, उसके बाद ये यूजर को शो करेगा, उसके बाद ये एक्टर होगा, रिलेशनशिप जो एरो होंगे ये हमारे रिलेशनशिप्स होंगे, उसके बाद बस यही कुछ है, यही दो तीन चीजें हैं इसमें। तो हम अभी इसमें जाते हैं कि हम अपने शेप इसमें आप अपनी शेप को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप इसमें यूज्ड केस डायग्राम होगा, तो आप स्टार्ट में जाए, इधर लिखा हुआ होगा यूएमएल यूज्ड केस डायग्राम। आप इसमें देख सकते हैं, आपको इधर से एक्टर भी मिल जाएगा, यूज्ड केस भी जो होगा वो भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको ये जो रिलेशनशिप्स है वो भी आपको मिल सकते हैं। तो इसी तरह
आप ये विजुअल ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा आपको प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया गया है कि आप इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें आप मीन्स कि हर एजुकेशन जो फ़ील्ड्स है इसमें सारी इसमें समा जाती है। मीन्स कि अगर आपका जो रिलेशन आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़नेस से हैं, तो आप इसमें बिज़नेस के भी डायग्राम्स बना सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, आप किसी भी फ़ील्ड के आप इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, या आप इकोनॉमिक्स के आप इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं। तो सिर्फ़ कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ़ नहीं है, लेकिन नहीं है, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये एक प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने मुहैया किया किया हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर है। तो आप इसकी मदद से आप आसानी से आप बना सकती हैं, इसमें हर किस्म का इसमें शेयर्स आपको मिल जाती हैं।